Good afternoon, sir. Good afternoon, doctors. Good afternoon, sir. Yeah, Good afternoon, Sarji. good afternoon. Welcome, all my friends. Today, we will see the insulator system of the body. Insulator system, that means the heat and cold regulating centers in our body. The core temperature and the surface temperature. There are two types of temperatures. So core temperature, that is the internal temperature, and surface temperature, that is the skin temperature. So why we in homeopathy give the importance to thermal? So इसका ही physiological parts ने दिया है कि what is the physiology of this temperature regulating factor system. Yes. So there are two temperatures of the body: core temperature and surface temperature. The temperature of the deep tissue of the body is core temperature. Remains almost exactly controlled within plus or minus 1 degree Fahrenheit day in and day out, except when a person develops a febrile illness. Only febrile illness में ही वो हैरी हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, लेकिन it will remain almost controlled. So our skin, our muscles, and the fats always try to control this temperature. The surface temperature, in contrast to the core temperature, rises and falls with the temperature of the surrounding. Yes. So these temperatures rise and falls according to the temperature of atmosphere, surrounding temperature. This is the temperature that is important when we refer to the ability of the skin to lose heat to the surroundings. Yes. So the mechanism for control of the body temperature represent a beautiful design control system which operate in health and in disease. So what is this system? What is the function of this system and how it is operated in health, in healthy condition? The skin, the subcutaneous tissues, and the fat of the subcutaneous tissues are a heat insulator for the body. Yes. तो फैट का मेन रोल है हीट को कंट्रोल करने में इन बॉडी. So the fat is especially important because it conduct heat only 1/3 as readily as other tissue, because most body heat is produced in the deeper portion of the body. So the insulation beneath the skin is an effective means for maintaining normal internal core temperature. तो फैट का मेन रोल है. और देखो, फैट ही ऐसी चीज है जो हीट के पास रह नहीं सकती, लेकिन फैट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. Heat is continually being produced in the body as a byproduct of metabolism differently in different constitutions. Yes, तो हमने फिजियोलॉजी में देखा था कि जिस कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिस बॉडीज में मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, उनमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है. सो बॉडी हीट इज आल्सो कंटिन्यूअली बीइंग लॉस्ट टू द सराउंडिंग. द वेरियस मेथड्स बाय व्हिच हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी आर. तो बॉडी हीट लॉस होने की 3 टाइप्स है.
की processes है, that is radiation about 60%, evaporation about 22%, and conduction is 18%. So this is the rate of evaporation of the heat from the body. Radiation, evaporation, and conduction. When the rate of production is exactly equal to the rate of loss, the person is said to be heat balance. The factors that are important in determining the rate of heat production are, which factors are? A, basal rate metabolism of all the cells of the body. BRM. Then increase in rate of metabolism caused by muscle activity, yes. And increase in metabolism caused by the effect of the epinephrine, norepinephrine, and sympathetic stimulation of the cells. Increase in metabolism caused by increased temperature of the body cells and effect of thyroxine on the body cells. So these are the factors that are important in determining the rate of heat production in our body. Hence, heat production in every individual depends upon the basal metabolic rate, BMR. जिसका BMR हाई है उनमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, जिनका लो है उनमें हीट प्रोडक्शन कम रहेगा. एंड मसल एक्टिविटी, आपके बॉडी की मसल एक्टिविटी कितनी होती है उस पर भी डिपेंड होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट. अमाउंट ऑफ इपिनेफ्रिन, norepinephrine, thyroxine, and sympathetic stimulation. So these are also plays an important role in heat production. So all these are different in different individuals depending upon their genetic constitution, that is the genetic code. Yes, तो हर किसी का BMR ज्यादा होता है या फिर कम होता है, ऐसा ही डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन. हर कोई मसल एक्टिविटी ज्यादा करता है या फिर हर किसी में थायरॉक्सिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन सही का ही रहेगा, ऐसा नहीं. जिनमें ज्यादा है उनमें BMR ज्यादा रहेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा रहेगी या फिर हीट प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ दिस. इसलिए देखो जो जिनमें थायरॉक्सिन ज्यादा होता है उनमें एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हॉट फ्लशेस इन बॉडी बिकॉज ऑफ heat, excess heat production. So to maintain the heat balance in every healthy individual and make all the system functions normally, the amount of heat radiated has to be controlled. Yes. This means people who have less heat generated through their metabolic or muscular activity have to conserve heat by accumulating more fat underneath the skin. Yeah. तो जो चिली पेशेंट होते हैं उनमें फैट ज्यादा होता है बिकॉज जो इंटरनल कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे. हीट रेडिएशन, हीट रिडक्शन इन बॉडी होना नहीं चाहिए, इसलिए स्किन में, क्यूटेनियस टिश्यू में फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा. तो आप देखो मोस्टली फैट डिपोजिशन कौन से पार्ट में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हीट. तो वहां हीट बैलेंस रहे, इंटरनल कोर टेम्परेचर बैलेंस रहे, इसलिए बाहर से हीट accumulation start हो जाएगा. That's why the mostly chilly patients are obese patients, and जो hot होते हैं that are lean thin. So therefore chilly people we have excess fat. This is proved by the fact that 3 or 2 marked drugs listed in the repertory under general rubric of obesity. In synthesis repertory are mostly chilly drugs. Out of 30 drugs mentioned, 24 drugs outright chilly. Yes. So chilly drugs are more than the hot drugs.
ओबेसिटी में देखो मोस्टली चिली ड्रग ही आपको दिखेंगे, लाइक 3 ग्रेड रेमेडीज, कलक्रिया, कैप्सिकम, फेरम, ग्राफाइटिस, फाइटोलेका, ऑल आर 3 ग्रेड चिली रेमेडीज. 2 ग्रेड चिली रेमेडीज, एकोनाइट, एम्ब्रा, अमोनियम, अमोनियम म्यूर, अमोनियम कार्ब, एग्नस, एंटिम कार्ड, एंटिम क्रूड, आर्सेनिक, असाफोइटिडा, ऑरम, बेला, कलक्रिया, कैलो, populus, cuprum, elapse, like this. So these are all chili drugs, and only few remedies in obesity are apis, crocus, lyco, natrum, pulsatilla, and sulfur. These are hot remedies for obesity. So very few remedies are hot in obesity rubrics, and number of medicines are cheap. Why? That's why these remedies have a tendency, genetic code of accumulation of fat. So their excessive fat is deposited to prevent the loss of internal heat, that is the core temperature, to the environment by radiations. So vice versa, the patient or the constitutions which have excessive heat production or excessive heat produced within them have to release it out to the surroundings. Hence, fat, which is poor conductor of heat, as mentioned earlier, is an obstacle and should be done away with. So lean, thin people like Iodium, tuberculinum, sickle core, bryonia, etc. shall be called. And therefore, these patients are very lean, thin. इसीलिए जहां हीट होगी वहां फैट रुकेगा ही नहीं. So the above idea is not a hard and fast rule, but just an indication of how the constitution of a person can have an effect on his will, and how thermals, that is tolerance to heat or cold, is a part and parcel of the constitution prescribed for. Yes. So this is the idea of our guru, Dr. Vijayakar sir. Mostly hot drugs are lean and thin, and chili drugs are obese. So this is the concept in health. Now in disease, in acute cases, that is during fever or loss of fluid from diarrhea, maintaining the heat balance is slightly more intricate and different. Yes, health में और disease में थोड़ा difference है heat balancing में. So it is the neuronal effect mechanism that decreases or increases the body temperature here. When the hypothalamic thermostat detect the body temperature as either too hot or too cold, it institutes appropriate temperature decreasing or temperature increasing procedures. Yes, तो ये सब कुछ कंट्रोल होता है थ्रू हाइपोथैलेमस. That's why it is a neuronal effect mechanism. Yes. So temperature decreasing mechanisms are vasodilatation, sweating, and decrease in heat production. So vasodilatation all over the body caused by sympathetic centers in posterior hypothalamus. So the control from the hypothalamus through vasodilatation. जो impulse आएंगे वहां पे vasodilatation होगा तो automatically heat balancing start हो जाएगा. So sweating causes heat loss by evaporation. Yes, sweating also. After sweating, body feels, skin feels, है ना, feels or feels to touch is cold.
जैसे हम हाथ लगाते हैं तो स्किन, वी फील स्किन इज कोल्ड बिकॉज ऑफ पर्सपिरेशन। तो ये क्यों? तो बिकॉज ऑफ हीट लॉस। तो अंदर कोर टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पर्सपिरेशन होगा, पर्सपिरेशन होगा, श्यूरिंग होगा, ऑटोमेटिकली अंदर का जो कोर टेम्परेचर है वो बैलेंस होगा। डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग श्यूरिंग एंड केमिकल थर्मोजेनेसिस। यस, तो हीट बैलेंस करना है बॉडी की ड्यूरिंग हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज इन फ्यूअर्स हीट प्रोडक्शन हो रहा है, तो बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो it is the impulse goes from the hypothalamus and shivering start। shivering जैसे स्टार्ट हो जाती है तो कोर टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी। So in order to achieve this, the changes which are brought about in the activity of person as a whole, the osmotic regulation increasing or decreasing the thirst, the increase or decrease in secretion of epinephrine, norepinephrine, and thyroxine, thereby giving rise to change in the behavior of the patient. Yes, all these constitutes an image as a drug picture which may or may not be the constitutional, but definitely has to be in relation to the original constitutional symbol. Yes, तो थोड़ा सा एक्यूट का सर ने यहाँ बोला है, तो जो भी ये होगा एक्यूट में, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या थायरोक्सिन बढ़ गया, तो हमें वो ड्रग देना चाहिए जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग से मैच करता है या फिर उसके रिलेशनशिप में हो। यस, क्योंकि ये सब जो हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्यूट डिजीज की वजह से होता है इन एक्यूट कंडीशंस, और बिकॉज ऑफ द हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द hypothalamus। yes, it is only neuronal impulse। तो हमें उसे एक्यूटली ट्रीट करना है, तो आप अगर पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पे है तो आपको उसके सिमिलर रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। देन एग्जांपल, इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन सल्फर पेशेंट हैज टू सफर फ्रॉम फीवर विद rigors, if he had changed thermals from hot originally to chilly। yes, sulfur it is hot, but when patient comes in acute condition and he feels or he have rigors or very chilly, if he who like being with many friends suddenly start getting angry at the crowd around him or gets irritated at slightest noise or question or when disturbed and has tremendous disease increase in the thirst, then it is nux vomica single dose which is indicated, and sulfur and not sulfur because his activity thermal mental axis has thus changed। So nux vomica, it is a complementary follow-away remedy of sulfur in acutes। yes, तो इस तरह से हमें एक्यूट में प्रिस्क्रिप्शन करना है if your patient is on constitutional remedy। yes, so now the relationship of remedies। तो शायद इसीलिए हर ड्रग्स के लास्ट में रेमेडी रिलेशनशिप दिया है ताकि हम एक्यूट में इजीली प्रिस्क्राइब कर सकें। हर ड्रग का रिलेशन किस मेडिसिन से है, फॉलोवेल कौन सी है, देन उसके सिमिलर ड्रग्स कौन से हैं, उसका एंटीडोट कौन सा है, ये सब उस रिलेशनशिप में लिखा हुआ है। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दिस वर्ल्ड इज मैथमेटिक्स, human being and its beautifully well balanced feedback system are all in homeostasis because of mathematics। Even the intricate mechanism inside a cell or human is governed by the laws and mathematical formula। yes, तो हर चीज जो मैथमेटिकल है वहां पे फार्मूलाज आएंगे।
बिकॉज उस फार्मूला से ही उसका साइंटिफिक में प्रूव होता है, इसलिए। तो इसमें क्या है मैथमेटिक्स, टेम्परेचर में क्या मैथमेटिक्स है, तो नर्स्ट इक्वेशन that governs the sodium and potassium in all tissues and cells states diffusion potential for sodium is equal to diffusion of potential sodium is equal to minus 61 into log concentration of sodium inside. So diffusion is equal to minus 61 into log concentration of sodium inside the cell divided by concentration of sodium outside the cell is equal to diffusion. जितना diffusion होगा उस ये according to this formula होगा. So permeability of a cell membrane to various elements is given by a formula. Permeability of membrane is equal to number of channels per unit area into temperature divided by resistance of channels per unit length multiplied by length of channels multiplied by square root of molecular weight is equal to permeability of membrane. So this is totally a physiological part. हमें अभी इस लेवल पे इसमें डिटेल में नहीं जाना है. यस, सो दीज एंड मेनी अदर मैथमेटिकल फार्मूला अराउंड इन फिजियोलॉजी टेक्स्ट बुक, द डेफिनेट वैल्यू कोटेड एज नॉर्मल फॉर हीमोग्लोबिन. यस, ये सब फार्मूले उस कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए यूज करते हैं जो हम फिजियोलॉजी में देखते हैं, पढ़ते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मलसी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द नॉर्मल condition or equilibrium of our each and every part of our body. So these part are the constituents of the blood or body fluids, etc. So these and many other mathematical formulas abound in physiology textbook. The definite values quoted as normal for hemoglobin, leukocytes, MCV, MCSC, blood sugar fasting, post meal, cholesterol, triglyceride, proteins, etc. are itself ample proof of mathematicity of the body. तो ऐसा नहीं है कि किसी के बॉडी में ये बहुत इसका नॉर्मल लेवल ज्यादा है या फिर इसका नॉर्मल लेवल कम है. ह्यूमन बीइंग के लिए एक नॉर्मल रेंज डिसाइड हुई है अकॉर्डिंग टू दीज फार्मूलाज फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस, और वो हर किसी के लिए लागू होती है. तो फिर इस नॉर्मल रेंज में, इस इक्विलिब्रियम में जब चेंज होता है या फिर वो हाई होता है या फिर लो होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज. तो इट विल बी ओनली एडमंसी if not foolishness on the part of the physician who does not agree that if any changes occur in the nature or behavior of behavior, or in the other word in secretions of neurotransmitter which result in anger and fear. Yes, that is neurotransmitter is adrenaline. तो जो नॉर्मल रेंज न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए बॉडी में दी है उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट माइंड पे होगा, बॉडी पे होगा, और उस पर्सन्स में, उस बिहेवियर में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर अप और डाउन हो रहा है उसके बिहेवियर में आपको माइंड में उसके चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे. सो जैसे एड्रेनालिन कॉजेस डिप्रेशन, सैडनेस कॉजेस सेरोटोनिन, epinephrine, etc. are unrelated to the original nature of person. और ये सब कुछ होता है in acute conditions or maybe in chronic condition like long lasting grief is also the serotonin or
epinephrine causes. Yes. So if these changes occur and if needed, we have to treat it. Suppose the patient, सर ने यहाँ क्लियरली कहा है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इन एक्यूट कंडीशंस हो रहे हैं, इन टेम्पररी स्टेट में हो रहे हैं, ये उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी रिलेशन में नहीं होता है. यस. तो अगर कोई पर्सन बेसिकली जेनेटिकली एंग्री है तो उसके अंदर वो लेवल कॉन्स्टिट्यूशनली जेनेटिकली थोड़ी हाई मिलेगी. लेकिन ये वही पर्सन अगर एक्यूट में बहुत माइल्ड हो जाता है, डल हो जाता है, नर्वस हो जाता है, तो अल्टीमेटली दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर में वहां पे चेंजेस आपको दिखेंगे. सो इन शॉर्ट, इफ चेंजेस are temporarily seen in the genetic constitutional simillimum during acute phase, the new drug picture is almost certain to be in relation to the original drug. Yes. So that is the sulfur might develop diarrhea of Noxomica or pulsatilla or an aloe, arsenic, etc. A calcarea carb constitution in fever shall develop generals, for example, thirst and thermals of belladonna, rustox, Noxomica, sepia, silicia, graphitis, natrum carb, etc. So if chili in thermal is still maintained, if the thermals had changed from chilly to hot during the fever, then it may mathematically manifest the symptoms of lipo or pulsatilla. Yes. तो मैथमेटिकल सर्टेनिटी सर ने यहाँ दी है कि अगर आप रियली इस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं कि यस ये गया ये आया, जैसे कि थर्मल्स हॉट पे चला गया, नाउ ही चिली, पहले हॉट था चिली हो गया, पहले थर्स्टी था थर्स्टलेस हो गया, है ना. देन उसका एक्टिविटी थर्मल थर्स्टी एक्टिविटी थर्मल मेंटल एक्सिस में कोई चेंज हुआ, पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन में और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत एंग्री था, नाउ ही बिकम माइल्ड, और फर्स्ट ही वाज वेरी माइल्ड, नाउ बिकम एंग्री. तो ये चेंजेस हमें यहाँ कैलकुलेट करके उस मैथमेटिक के लाइक अ मैथमेटिक हमें उसके सब सिम्टम्स एडिंग माइनस करके उसकी रेमेडी निकालना है. दैट्स व्हाई सर सेज इट इज ओनली मैथमेटिकल सर्टेनिटी और दिस इज मैथमेटिक्स. सो दिस टर्म होम्योपैथी इज मैथमेटिक इज प्योरली अ Jacob's term. So lycopodium constitution is affected by dynamic stronger influence may change to manifest general symptoms of lachesis, sulfur, pulsatilla, bryonia, iodine, thalioid, ignitia, epicap, silicia, sepia, Noxomica, phosphorus, etc. So these all drugs are in relation with lycopodium. So thus it is of at most important to know the relationship of remedies. This knowledge may accidentally help us or guide us to find the right GCS, genetic constitutional simillimum, a case of tuberculosis of lungs which I have cured amply demonstrate the upper concept here. तो सर ने यहाँ एक ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट का एग्जाम्पल यहाँ बताया कि किस तरह से सर ने उस पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप क्योर किया. तो सिंपल केस एग्जाम्पल सर ने यहाँ दिया है. अ लेडी एज 38 years suffering from pulmonary coughs came to me with a picture of rustox. She would be better and relapse again and again. And dose of rustox every 15 days would relieve her. Yes. तो जब पेशेंट सर के पास ये आया तो सर ने उसका रस्टॉक्स मेडिसिन निकाला, लेकिन रस्टॉक्स से उसे टेम्पररी रिलीफ होता था, पैलिएशन होता था. एवरी 15 days सर वाज रिपीटेड दैट रस्टॉक्स. आफ्टरवर्ड शी फील्स
better, and again, after few days, all symptoms come back. So, but the X-ray follow-up after 1 month did not show any change in the cavity of lungs. तो इतना रिपीट करने के बाद patient feels better after the dose, but no change in pathology. So, but the X-ray follow-up after 1 month did not show any change in the cavity. This led me to interrogate her husband about her nature again. तो सर ने वापस वहां रीकेस टेकिंग किया और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया with relatives. He insists that she has not told me her real nature. तो हस्बैंड ने बोला कि उसने आपको उसका रियल नेचर बोला ही नहीं. He summed up her whole nature as unlivable weak. She is so touchy, anxious, irritable, and discontented. And everybody in her house is afraid to talk her. We keep distance from her because of her irritating nature. Rustox is also irritating, but Rustox is not covering the whole constitution. Then she nags and complains that we don't care for her. She wants me to be with her everywhere she goes. She is so restless that she just cannot sit and do anything continually. Very restless, anxious. This restlessness perhaps had misguided me to Rustox. Here, after seeing Rustox act partially, I was sure the constitutional was not far off. So Rustox was partial simillimum. That's why sir think that sir is near, just near to the constitutional remedy because of the partial simillimum Rustox. So she is so restless that she just cannot sit and do anything continually. This restlessness perhaps had misguided me to Rustox. Here, after seeing Rustox act partially, I was sure the constitutional was not far off. I had only to open the relationship book to find out which drug had Rustox following well. Since Rustox was acute, the constitutional drug has to have Rustox following well are Sina, Calcrea, China, Ignitia, Naxomica, Platina, Pulsatilla, Rustox, Silicia, and Stannum following it well. Yes. So these are the drugs in relationship with Rustox. So with the picture now clearly showing the mentals and generals of Sina, very irritating, touchy, anxious, discontented, etc. is Sina. So Sina is the complementary follower remedy of Rustox. So Sina, I did not hesitate to prescribe a single dose of Sina 200. Believe it or not, the cavity disappeared within 3 weeks, never to relapse again. The total tuberculosis was totally healed with Sina. Thus, knowing of relationship of remedies is a must. Yes, so everyone must have the knowledge of remedy relationship. Those who do not feel the need to do so, perhaps
are not practicing holistically. Hence, when I used to practice it that way, haphazardly, I never realized the importance of relationship of remedies. Yes. So, अगर देखो एक्यूट में सभी को प्रैक्टिस करना है, लेकिन हर बार आपके पास एक्यूट के न्यू केसेस ही आएंगे ऐसा नहीं। कुछ पेशेंट्स एक्यूट के ओपीडी में आपके, कुछ पेशेंट आपके रेगुलर पेशेंट भी होंगे जिनको एक्यूट प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ इंडिस्पोजिशंस है। इसलिए अगर वो पेशेंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग पे हैं तो आपको वहां रेमेडी रिलेशनशिप में ही जाना पड़ेगा। जो आपके पास फर्स्ट टाइम है आए हैं न्यू एक्यूट पेशेंट्स हैं, उनको आपको रेमेडी रिलेशनशिप देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यस, सो दिस इज द रेमेडी रिलेशनशिप एंड heat insulator system of the body. So this is the chapter number 5 is completed today. So this is today we have completed the theoretical part of the theory of acute book. Now only the practical part, the materia medica part of this book, that is chapter number 6 second part. इसमें सर ने पूरे ड्रग्स दिए हैं, इसमें थोड़ा पार्ट एक्टिविटी डिक्रीज का दिया है जो थ्योरी पार्ट में सर ने नहीं लिया था, दैट इज द एक्टिविटी डिक्रीज स्लीप ओवर पावरिंग। तो स्लीप ओवर पावरिंग में जब सर ने ये बुक लिखा था तब ओनली 3 ड्रग्स सर ने ऐड किए थे, दैट इज ओपियम, एंटीविटाड एंड नक्स मॉस्केटा। तो उसके बाद बहुत से ड्रग्स सर ने इसमें ऐड किए। तो एक्टिविटी डिक्रीज स्लीप ओवरपावरिंग क्या है, तो हम ये अभी लेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि इस इंसुलेटर सिस्टम पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर हॉट और चिली कंसीडर करना है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स हैं जो हॉट और चिली देखते ही नहीं है, क्योंकि हैनेमन ने ये लिखा नहीं, ऐसा उनका कहना है कि हैनेमन ने लिखा नहीं और रेपर्टरी में इसके लिए कोई रूब्रिक नहीं। तो कैसे पहचानना कि रेमेडी हॉट है कि चिली है, क्योंकि कोई बुक में ऐसा लिखा नहीं है कि हॉट रेमेडीज कौन से और चिली रेमेडीज कौन से है। तो जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये इसके लिए बहुत प्रॉब्लम जाता है कि किस तरह से पहचानना कौन सा ड्रग हॉट है और कौन सा चिली है। इसके लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लेंगे स्लीप ओवर। यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स गए हॉट चिली देखने में, इसलिए बहुत से डॉक्टर्स ने ये छोड़ ही दिया कि हॉट चिली देखना है, क्योंकि कहीं ये पढ़ने में नहीं आता है कि ये ड्रग हॉट है, ये चिली है। लेकिन एक अंदाजा आप उस जब आप पूरा ड्रग पिक्चर पढ़ते हैं तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिन ड्रग्स में हॉट के लिए टॉलरेंस बहुत कम होता है और थोड़ा सा भी हॉट से उनके सिम्टम्स एग्रेवेशंस होते हैं मॉडलिटीज में, जब आप देखेंगे तो वो ड्रग्स जिनमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा है, जो हीट के लिए हीट टॉलरेंस उनमें कम है और हीट के लिए सेंसिटिव है, दैट ड्रग्स आर हॉट। और उसी टाइप से जब चिली ड्रग्स हम देखते हैं तो चिली ड्रग्स में जब
कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी हाई होती है, एग्रीवेटेड बाय कोल्ड होते हैं, टॉलरेंस टू कोल्ड बहुत चिल्ड कोल्ड थिंग्स के लिए बहुत कम है, तो इट इज चिली ड्रग्स। तो ये जब हम होल ड्रग पढ़ेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि ये ड्रग चिली है, ये ड्रग हॉट है। और बहुत से सर ने बहुत सी किताबों में, सर की जितने भी किताब है उनमें मोस्टली ये टॉपिक आया है हॉट चिली का, और बहुत बार सर ने उसमें लिखा है कि दिस ड्रग इज हॉट, दिस ड्रग इज चिली। चिली हॉट की लिस्ट भी दी है, एक्यूट में भी दी है, बाकी बुक्स में भी दी है। तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग इसे समझ नहीं सकेंगे। यस, सो सर यस, सर पल्सिटिला हॉट में आती है? पल्सिटिला बेसिकली हॉट है, लेकिन बिकॉज ऑफ द हिज जेनेटिक टेंडेंसी दैट इज चेंजेबिलिटी, तो उसके थर्मल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो जो थर्मल्स उसके हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आप उसे कंसिडर कीजिए। ओके। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया और वो बोल रहा है कि मुझे ठंडी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, मुझे ठंडी भी सहन नहीं होती है, गर्मी भी, क्योंकि थोड़ी देर ठंडी लगेगी, वापस थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगी, दिस इज चेंजेबिलिटी इन थर्मल, है ना। सुबह आज बहुत मुझे गर्मी हो रही थी और शाम को इतनी ठंडी लग रही थी, दिस इज चेंज ऑफ थर्मल। तो ऐसा नहीं है अब कि वो सुबह हॉट करना भी चिली हो गया, नहीं, दिस इज द मेन रूब्रिक इज चेंजेबिलिटी। तो ऐसे टाइम पे हम उसे पल्सिटिला ही देंगे बिकॉज ऑफ हिज चेंजेबिलिटी। यस, तो पल्सिटिला में आप ऐसा स्ट्रांगली नहीं बोल सकते कि पेशेंट हॉटी है या फिर चिली है। थैंक यू सर। यस राउत जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर इसमें जैसे अभी सर की बुक्स में जो रेमेडी रिलेशनशिप दिए हैं, तो उसमें बहुत सारे मेडिसिन की रेमेडी रिलेशनशिप नहीं दिए है आपने, तो अपन ये बोरिक वगैरह यूज कर सकते क्या सर? पीछे के जो दिया है रेमेडी, आप बोरिक यूज कर सकते हैं, या फिर बोरिक से भी बहुत अच्छा दिया है सिनॉप्टिक मैट्रेमेटिका में, तो आप सिनॉप्टिक मैट्रेमेटिका भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से उसमें दिया है। और जैसे क्रोनिक में जब तक थर्मस चेंज नहीं होते तब तक अपन नहीं देंगे सर, नहीं क्या? एक्यूट में एक्यूट में कोई प्रॉब्लम आया तो कभी बहुत ज्यादा ही रहा तो फिर सेम रेमेडी रिपीट कर सकते हैं, नहीं क्या सर? सेम जैसे अभी थर्मल्स है तो, सेम और थर्मस है। सेम थर्मल्स है, बट जो जनरल पैरामीटर्स है टोटली डिस्टर्ब हुए हैं, तभी हम दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर कोई पेशेंट गर्मी में बहुत गर्मी बोल रहा है और ठंडी में बहुत ठंडी बोल रहा है, तो उसका अपन ये क्या लेंगे, क्या लेंगे? एम्बिथर्मल, he is sensitive to both heat and cold, that is ambithermal. ओके। हेलो सर। हेलो हेलो Yes, सर, yes. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर इसमें हिस्टेरिकल भी लेते हैं क्या टेम्परेचर में, जब हीट और कोल्ड रहता है? नहीं, हिस्टेरिकल पेशेंट में हम थर्मल्स कंसिडर नहीं करते। तो जैसे सर ये ड्रग रेमेडी आता है, हिस्टेरिकल ड्रग बोलते हैं शायद इसको, इग्निसिया हो गया ये सब, तो इस सब के केस में अगर कभी कभी मैंने और लोगों को देखा है जो अभी जुड़े हैं अपने यहाँ से प्रिडिक्टिव से, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हिस्टेरिकल रेमेडी है यार तो चलो चिली हॉट हो गया, और ऐसे सेंसिटिविटी चिली और हॉट दोनों से तो 4 ठे दवाई है 5 ठे। मोस्ट ऑफ द हिस्टेरिकल रेमेडीज आर चिली, मोस्ट ऑफ द, देखो आप इग्निशिया है, सेपिया है, सिमिसिक्यूगा है, देन साइक्लामेन है, नक्स मोस्टा नस्मोस्टेटा है, यस, तो स्टैमोनियम है, कैनेबिस इंडिका है, ये सब ड्रग्स चिली है। यस,
अच्छा अच्छा। तो मैं सर मुझे तो गर्मी भी बहुत लगती है, ठंडी भी बहुत लगती है, इसका मतलब मैं मरकरी ले लूं क्या? नहीं, पहले आप देखो हिस्टेरिकल है क्या। और तो मुझे कुछ नहीं है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, ठंडी भी बहुत लगती है। जैसे अच्छा, सर ओपीडिया वाले आ जाते हैं, ओपीडिया ग्रुप के ज्यादातर तो वो लेकेसिस है या ये लोग, तो उनको गर्मी बहुत लगती है, ठंडी भी बहुत लगती है। तो उसके लिए तो हम लोग ये नहीं पकड़ते हैं ना कि ये एम्बीथर्मल है। एक्चुअली एम्बीथर थर्मल का मीनिंग ये है कि जो पेशेंट हीट एंड कोल्ड के लिए बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, जैसे कि हीट भी टॉलरेट नहीं कर पाता है और चिल भी नहीं, तो दोनों चीज के लिए बहुत सेंसिटिव है, तो वो एम्बीथर्मल है। जैसे पेशेंट ठंडी भी सहन नहीं कर पाता और गर्मी भी नहीं, या फिर पेशेंट ये हेलो भी बोलता है कि मुझे ठंडी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और गर्मी से भी हेलो। नहीं, तो वो एम्बीथर्मल है। तो सर एसिड फ्लोर एक ड्रग है ना, एलेन की नोट में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो बहुत काम करता है, बहुत मेहनती होता है, थकता नहीं है, और न तो गर्मी से, न हीट से, न कोल्ड से प्रभावित नहीं होता है। तो ये अपने इसमें तो नहीं लिखा हुआ है Actually, इसमें। actually, all fluorides are hot, extreme hot, all fluorides. अच्छा। लेकिन जैसे कि फ्लोराइड में सर ने बताया कि कुछ एम्बीथर्मल भी है, जैसे कि फ्लोरिक एसिड। हम्म। तो आपको हर ड्रग को स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, हम्म। विच मतलब उनके थर्मल्स में जाके, उनके मोडेलिटीज में जाके, उसके पूरे ड्रग पिक्चर में कि ये ड्रग टुवर्ड्स हॉट है कि चिली है। ठीक है? और अच्छा मोस्टली एम्बीथर्मल ड्रग्स आर बहुत कम दिए हैं, और अगर किसी पेशेंट में स्ट्रांगली ही मिल रहा है आपको एम्बीथर्मल है तो ही उसमें से यूज कीजिए। सर मेरा एक केस है और मैं 4 महीने से देख रहा हूँ, मैंने आपसे एक बार चर्चा भी किया था। कार्पल टनल सिंड्रोम का केस है, 22 साल से। पेशेंट बहुत परेशान था, तो उसको राइट आर्म से लेके राइट साइड हेड में भी उसको स्पार्किंग होती थी, झंझनाहट होती थी नर्व में। तो हमने आपसे किया था, तो आपने कहा वर्क को लेके कहीं स्टीम उसका गया है। तो पहले हमने बहुत मेहनत किया, कहीं नहीं बताया। तो उसने बताया कि जो व्यवसाय करता था उसको लगा कि अरे यार सब तो बोलेंगे कालीने काम करला जो लहता है, वो मोहम्मद है, तो उन्होंने ऐसा ही बोला। तो उस व्यवसाय को 1 साल उन्होंने छोड़ा, फिर 1 साल बाद दूसरा व्यवसाय उन्होंने शुरू किया, उसके बाद ये शुरू हुआ। उनका जो नेचर था, झगड़ा करना, मार करना, लड़ाई करना, बहुत फास्ट होना, मिस्चीवियस होना, फोड़ देना, बहुत बात करना, उतावलित होना, वो सब के हिसाब से मैंने सिम्पैथेटिक विनोविलेंस देख के जो रूब्रिक में आया, टेरेंटुला सी जब मैंने दिया तो वो पेशेंट को ना अ, अ, वो जो झुनझुनी हो रहा था उसके हाथ में बहुत, रात में, और गर्दन में भी सर्वाइकल हो गया था, वो सब काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन पेशेंट को ना 1 डेढ़ महीने से आई लिड पे ना नोड्यूल फॉर्म हो गया, बार 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 उसको स्टाई बन रहा है दोनों में, रिकरेंट जो है। कि वो बहुत डिस्टर्ब, पेशेंट उससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और उसमें साइज नोड्यूल। इट इज एक्चुअली इट इज सुपरफिशियल, उसको कार्पल टनल सिंड्रोम था, तो वो थर्ड लेयर से अभी स्किन पे आया है, और स्टाई इट इज इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, दैट इज जी इट इज सोरोसाइकोटिक कंडीशन, तो इट जी इज जी गुड साइन, वेट एंड वॉच जी हो जी। जाएगा। हाँ लेकिन सर क्या है ना, वो 2 महीने, डेढ़ महीने से वहां पे नोड्यूल फार्म होके बन रहा है, और आज कल अभी एक बन गया है। तो हो, बोल। तो यस यस सोरोसाइकोटिक है ना, तो वो थोड़ा जी सा सर। वक्त लेगा ही, जी जी। जाएगा, लेकिन 100% जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। उसको आप अच्छी तरह से काउंसलिंग करो तो पेशेंट समझ जाएगा। जी जी, हमने उसको समझा के रखा है, आज बोला कि यार सर से बात करेंगे, तो फिर हम उसको, अगल बगल के लोग बोल रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो हम कहे आपको आज क्लियर हम मैसेज दे दे रहे हैं, आप कुछ Yes, करना नहीं। कुछ करना नहीं, और वो कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, वो निकल जाएगा। उसको सर क्या करें हम अभी, टेरेंटुला सी फिर 1 दें कि 200, हम 5-6 डोज दे चुके हैं उसको, नहीं, दे अभी के वेट रखे हैं एंड तो। वेट करो थोड़ा, थोड़ी दिन, नहीं तो फिर 1M उसको रिपीट कर देना। हाँ क्योंकि सर ना कम से कम 7-8 बार 10 बार निकला है, आज फिर निकल गया है।
हाँ, वही फिर दिखाने के लिए आप आया था। रिपीट कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, रिपीट कर सकते हैं 1 ml। यस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही अगर किसी के केसेस है, जैसे कि बहुत से डॉक्टर्स ने बहुत से केसेस क्योर भी किए होंगे, कुछ सॉल्व भी किए होंगे, या फिर कोई किसी डॉक्टर्स की केस कुछ अटक गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, है ना, क्या कुछ मतलब वे नहीं सूझ रहा है कि हम राइट वे पे है कि रॉन्ग वे पे चल रहे हैं, पेशेंट को रिलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई किसी पेशेंट को रिलीफ आया और अब स्टॉप हो गया। तो ऐसे अगर आप लोगों की कुछ भी केसेस होंगे तो आप एक एक यहाँ केस बताया करें तो हम उसमें से सॉल्यूशन निकाला करेंगे। यस। अरे सर बहुत सभी अच्छी बात लोग इसमें सभी लोगों का उसमें मतलब नॉलेज भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और हर किसी को कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा, और आप लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो लास्ट में हम एक 10 मिनट उसके लिए रखा करेंगे कि अगर किसी की कोई भी केस है, या फिर आप लोगों के ने कोई केस बहुत अच्छी तरह से सॉल्व की है, केस पूरी सॉल्व हो गई है, लेकिन उसके आगे समझ में नहीं आया अब इसके आगे क्या होगा। तो ऐसे भी कुछ केसेस होंगे। क्या रूब्रिक्स आपने लिए थे, क्या हिस्ट्री कंसिडर किए थे, किस टाइप का एनालिसिस किया था, ये अगर शॉर्ट में आप 10 मिनट में यहाँ पे बताया करेंगे तो बाकी लोगों को भी आपके शेयरिंग से कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, उनका भी करेज बढ़ेगा। इसलिए हम लास्ट के 10 मिनट उसके लिए रखा करेंगे। तो आज से आप अपना वर्कआउट करना शुरू कर दो। या आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोगों ने आज तक की प्रैक्टिस में जितने भी केसेस देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, या फिर आप किसी केस में लटक गए होंगे, समझ में नहीं आ रहा, तो वो केसेस आप लिख के रहिए, यहाँ पे पढ़िए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस। हाँ सर, एक केस 22 साल से चल रहा है बीएचयू में सर, और वहाँ के जो सबसे अच्छे न्यूरो के डॉक्टर हैं बहुत फेमस जो है उनके अंडर में चल रहा है, और 4 महीने से मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत खुशी है। अभी आँख पे अटका हुआ है तो पेशेंट परेशान है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है आज करते हैं हम आपको, ये जो स्टाई बार बार में आ रहा है आपको 1.5 महीने से आप लटके हुए हैं यहाँ पे, हम आपका इसका उदाहरण करते हैं, देखते हैं। नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। थैंक यू सर। उसको अभी एंटीसोलिक रेमेडी के शायद गरज पड़ सकती है, लेकिन पहले देखो 1 m रिपीट करने के बाद उसका प्रॉब्लम निकल जाएगा। मोस्टली नहीं निकला तो बाद में और सोचेंगे। अच्छा यस। ठीक है सर। यस, विनोद जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर Good मुझे evening. ये पूछना था कि सल्फर के बाद अगर सपोज हमको लाइको देना है तो बीच में कल्केरिया कार्ब देना पड़ता है, क्योंकि नहीं वो नहीं, बिल्कुल नहीं, सल्फर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कल्केरिया बिल्कुल लाइको नहीं। ऐसा ये ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन हैनेमन ने जो कहा है कि जी बहुत से केसेस में आपको एंटीसोरिक रेमेडीज देनी पड़ती है। ओके ये डॉक्टर हैनेमन ने कहा है कि अगर केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कुछ मतलब मोस्टली जो सिम्टम डिजीज सिम्टम थे वो चले गए, लेकिन हाँ छोटे छोटे सिम्टम्स बाकी है, वो जा ही नहीं रहे। जैसा इनका हाँ अभी आते हैं। स्टाई का प्रॉब्लम जो इन्फ्लामेटरी है, सोरिक है, वो जा ही हाँ नहीं रहा है, दैट इज सोरिक सिम्टम, है ना, और जी वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो ऐसे केसेस में मोस्टली हैनेमन ने कहा है कि आपको लास्ट में एंटीसोरिक, मैंने ये हिंट्स ऑफ द डे में बोला था कि जब तक हम एंटीसोरिक देंगे नहीं तब तक वो केस सॉल्व होंगी नहीं, ये हैनेमन ने बताया। जी। नहीं सपोज अपने को लगा कि नहीं सल्फर से नहीं ठीक हो रहा है, शायद लाइको होगा, तो लेकिन फिर डायरेक्ट लाइको दे सकते हैं कि कल्केरिया कार्ब बीच में देना है, ऐसा पूछ रही मोस्टली तो वो देने के लिए नहीं कहा है हैनेमन। नहीं देना है। ओके नहीं। डायरेक्ट दे सकते हैं हम लाइको। यस। ओके थैंक यू सर। लेकिन लेकिन चेंज करना ही नहीं, वो सल्फर से सॉल्व होने को ना केस। फिर एक्यूट में आप उसे भलाई दे सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, कॉम्प्लीमेंट्री, अगर उसके थर्मल्स कुछ मेंटल्स एक्टिविटी चेंज हो गई होंगे। यस। सर सल्फर भी हॉट है, फिर लाइको भी हॉट है, फिर कैसे देंगे सर एक्यूट में? इसीलिए तो कहा है कि मोस्टली नहीं देना चाहिए। यस, माधुरी जी। गुड इवनिंग Good evening. सर।
मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि यंग चाइल्डहुड और यंग एज में पेशेंट इज आइदर हॉट और चिली, बट एज द एज प्रोग्रेसेस तो ही बिकम तो चेंज हो जाता है, या तो चिली दैट जो हॉट है पेशेंट वो बिकम चिली। यस, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ये क्यों होता है? Okay. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी लॉस्ट हो जाती है बॉडी में, हीट प्रोडक्ट, क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, मसल एक्टिविटी कम हो जाती है, दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म बिकम लो, स्लो, तो हीट प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसलिए वो पेशेंट लास्ट में चिली बन जाते हैं, राइट? तो कौन सा कंफर्मेशन लेना चाहिए, जो मतलब जो अभी का अब सेट है प्रीवियस? डिपेंड करता है उस डिजीज पे। अब अगर वो ओल्ड एज में अपने पास आया है, उसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम आया है, क्योंकि ओल्ड एज है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एज वहां पे डिजीज कौन सा होना चाहिए? मोस्टली सिफिलिटिक। तो हमें उस कंडीशन से उसको निकालना है, इसलिए आपको जो आपके सामने प्रेजेंट है वही कंसिडर करना पड़ेगा। जो स्टेट ऑफ जो बॉडी स्टेट चेंज हुई है वही आपको कंसिडर करनी है। यस, जय श्री। हा सर, सर काल अॅक्यूट अपेंडिसायटिसची जी केस होती त्याच्यामध्ये आपण अॅक्यूट मध्ये डायरेक्ट म्हणजे तिला परत अॅक्यूट एपिसोड मधून निघाल्यानंतर कॉन्स्टिट्यूशनल दिलं का? यस यस, ती केस माझ्याकडे 3-4 वर्ष राहिली, नंतर तिला जे जेनेटिक प्रॉब्लेम्स होते काही ते पण सॉल्व्ह झाले तिचे, तर कॉन्स्टिट्यूशनल मग मेडिसिन चेंज झाली की आर्सेनिकच होती निघाली? ऍक्च्युली जी आर्सेनिक अल्बम आहे तिला 2-3 वर्ष कंटिन्यू राहिली, कारण आर्सेनिक अल्बम इट इज अ क्रॉनिक रेमेडी, राईट? ओके. यस, आणि ती क्रॉनिक असल्यामुळे तिची ती जीसीएस पण होती, परंतु लास्टला काहीतरी 2 वर्षानंतर तिला काहीतरी दुसरा एक प्रॉब्लेम झाला होता, ती केस मला बघावी लागेल तो प्रॉब्लेम काय होता, तर त्यानंतर एक रेमेडी चेंज केली होती, परंतु त्या रेमेडीने तिला फरक नाही पडला. ओके. Yes. तर अॅक्यूट मध्ये आपण 200 यूज केलं तर आपण म्हणतो अॅक्यूट मध्ये हायर पोटेन्सी यूज करायला पाहिजे. ते नाही, असं काही नाही. मोस्टली विजयकर सरांनी सांगितलंय की अॅक्यूट मध्ये तुम्ही मोस्टली 200 रेमेडीज द्या, 200 पॉवर रेमेडीज द्या, 200 पोटन्सी यूज करा अॅक्यूट मध्ये. अच्छा. ओके. थँक्यू सर. ज्या सिव्हिअर सिफिलिटिक केसेस असतात तिथे तुम्ही टेनियम किंवा जिथे व्हायटॅलिटी एकदम डाऊन आहे तिथे हायर पोटन्सी यूज करा. येस, ओके. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू. So now the activity decrease, that is the sleep overpowering. सर ते मेडिसिनला रिपीट किती वेळा केलं होतं आर्सेनिक? आर्सेनिक तिला अॅक्यूट मध्ये तर नाही केलं, एकच डोस दिला. त्यानंतर काहीतरी 6 महिन्यानंतर तिला परत एक डोस रिपीट केला होता, तो तिचा कॉन्स्टिट्यूशनल म्हणून. अच्छा. कारण तिला तिचे जे सीटीईव्हीचं ऑपरेशन झाले होते दोन्ही पायाचे, तर त्याच्यामुळे तिला चालण्यामध्ये प्रॉब्लेम होता आणि तिला क्रॅम्प्स यायचे काफ मसल मध्ये आणि नमनेस असायचा लेग्स मध्ये, त्यामुळे मी तेव्हा तिला 200 रिपीट केलं होतं. तो प्रॉब्लेम पण तिचा गेला क्रॅम्प्सचा आणि हे, परंतु जो सर्जिकल डिफॉर्मिटी तिच्यात आली होती बिकॉज ऑफ सर्जरी, जी डिफॉर्मिटी आली होती, कारण सीटीईव्ही मध्ये सीटीईव्ही ऑपरेशन्स मध्ये ते मसल्सला टेंडनला कट करून ते रिजॉईन करतात ना, त्यामुळे काही कुछ ऑपरेशन के बाद जो भी डिफॉर्मिटीज उसमें आई थी वो करेक्ट नहीं हुई ओनली, लेकिन जो सिम्टम्स थे वो चले गए थे. थँक्यू सर. सो सर पण समजा तिला एक्सक्यूज मी सर, हॅलो, फक्त तिला जर अॅक्यूट अपेंडिसायटिस असता आणि जर ती अॅक्यूट मधून बाहेर काढायचं असेल तर आपण तिला अॅक्यूट मेडिसिन दिल्यानंतर फक्त अपेंडिसायटिस साठी परत रिकेस टेकिंग करायला पाहिजे का? जर तिला दुसरा प्रॉब्लेमच नाहीये, फक्त अपेंडिसायटिसचा प्रॉब्लेम आहे तर? तुमच्याकडे अॅक्यूट साठी पेशंट आला तर अॅक्यूट मध्ये जी हिस्ट्री घ्यावी लागते ती घेऊन तुम्ही प्रिस्क्राइब करा. जर वो पेशेंट अगर आपके पास क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस के लिए आए तो आपको तो उसको जीसीएस ही देना पड़ेगा.
Okay, sir. Thank you. So sleep overpowering. This section constitutes all patients or constitutions which become dull to such an extent that they sleep a lot during acute infections or fevers. The mother complains that the child who wakes up daily at 7 a.m. slept today up to 12 noon. Woke up at something to eat and went back to sleep again. This is called sleep overpowering. In short, need for sleep become great. Sleep overpowers all sense. The patient is difficult to arouse. This should be differentiated clinically from sleep comatose or coma or unconsciousness.